Hello students and welcome in the foundation batch. As the name is the foundation, so we'll discuss here some very basics concepts from the science and maths, all those things. So again you can learn the concepts very in the easy way, and if you have any doubts you can ask here. So today is in the foundation batch I am going to start a basic concept, basic topics from the mathematics, that is what exponent. So जैसे जैसे आपका ये बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तो इन द कैलकुलेशन और सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इट विल हेल्प्स यू. दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग दिस फाउंडेशन बैच. So let's see. So today we'll discuss one very basic topic, that is the powers. About the powers we are going to discuss, and power is nothing but it is also called the exponent, all those things. So एग्जाम्पल के साथ और बाकी सारी चीजों के साथ हम कंसेप्ट और ये सब सीख सकते हैं. So very easy. So let's start with that. So our topic is what? Exponent. ठीक है, exponent, or you can say power and indices. ठीक है, all those things you can say that. Okay, now let's start with that. So power, index, and this is very, I am starting with some examples directly, so it will helps to learn that basic things. For example, you need to multiply, suppose that any number, or you can take 2 into 2. What you can write? 2 into 2, this is nothing but 4. Or you can say that we are multiplying 2 times, so we can write like that, 2 raised to 2. Same, in the same manner, suppose that we are multiplying 2 into 2, that is we are multiplying in 3 times, so that's why it is what? 2 raised to 3. Very simple. So in the same manner, suppose that if there is any number, any rational number, we are multiplying n times, means a up to कहाँ तक? It is n times. So what is the value of that? तो इनके हिसाब से, इनके accordingly, whatever weight is, similarly we can say that is what? A raised to n. Clear? It is what? A raised to n. And here this n is nothing but it is called what? It is called the power. Okay, it is called power, it is called index, it is called indices, it is called exponent, whatever. Well, very basic concept is what? That is, once you are multiplying any number n times, 3 times, 2 times, तो वो कहाँ जाता है? जिस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसके सिर पे आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द पावर्स. तो उसके पावर पे आ जाता है. और ये जो नंबर है ना, दैट इज व्हाट? दिस इज द रेशनल नंबर, यू कैन से दैट. ठीक है, ऑल रियल नंबर, इंटीजर्स एंड ऑल दोस थिंग्स. सो रेशनल नंबर. ठीक है, सो दिस इज रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के सर पे जो बैठा हुआ है जो नंबर है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पावर. ठीक है. अच्छा, तो बेसिक कंसेप्ट अगर पावर या एक्सपोनेंट का देखा जाए तो बस इतना सही है कि वंस यू आर मल्टीप्लाइंग दैट वन, तो ये क्या होगा? एक a रेज टू n हो जाएगा. अच्छा, इन द सेम मैनर, सपोज दैट आई एम मल्टीप्लाइंग, इन द सेम मैनर, सपोज दैट हम लोग इसी चीज को अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे? लाइक दैट, सपोज दैट 1 by a into 1 by a up to कहां तक? Up to n times. So that becomes what? In the same manner, 1 upon a up to कहां तक? n times. So that is nothing but 1 upon a into up to कहां तक? n times. Correct? n times. So this becomes what? It is becomes 1 upon a raised to n. Same thing. And once it is going up, डिनोमिनेटर अगर ऊपर जाता है, so जो इसका इंडेक्स है, that is what? Minus n. What it is saying that one? कि before that, whatever the concept we have done, कि a up to n times, so ये जो हम लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? That rule is true for the negative integers also. तो जो हम लोगों ने लास्ट टाइम मल्टीप्लाई किया, इससे जस्ट पहले a n टाइम्स किया था, और अभी हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों अगर बात किया जाए तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये जो लास्ट टाइम हमने ये रूल लिखा, a अप टू n टाइम्स, दैट इज n, सो दिस n कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. मतलब ये नेगेटिव इंटीजर के लिए भी ट्रू है. दैट इज वेरी सिंपल थिंग
कि आप अगर 1/a मल्टीप्लाई करते हो या फिर a इंटू ए मल्टीप्लाई करते हो, बोथ हैविंग द सेम मीनिंग, यानी कि रूल पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी ट्रू है, नेगेटिव इंटीजर के लिए भी ट्रू है। सो एक नंबर का जो पावर है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है, वो दोनों के लिए ट्रू है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा बेसिक थिंग कि ये पावर कहां से जाता है, इसको हम एक्सपोनेंट किसको कहते हैं। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो ये हम लोगों ने a लिख रखा है ना, दिस a इज नथिंग, इट इज कॉल्ड द बेस ऑल्सो। ठीक है, सो ये बेस है एंड दिस इज व्हाट, यहाँ पे कौन है, इट इज पावर है। क्लियर, ओके। सो नाउ अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, तो पहले हम लोग रूल्स देखेंगे, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूलाज या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी दैट कि व्हाट इज द, ओके, सो लेट्स सी देयर आर सम रूल्स। तो पावर और एक्सपोनेंट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें ये रूल सबसे पहले आना बहुत जरूरी है, इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना, देन हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं और देखेंगे प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी दैट कि रूल क्या है। सो यहाँ पे यू कैन सी दैट a रेज टू m और a रेज टू n, अगर ऐसा कोई मल्टीप्लीकेशन आता है, सो वी कैन राइट a रेज टू m प्लस n लिख सकते हैं, करेक्ट। एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखना है, दैट इज व्हाट, कि यहाँ पे जो a है दैट इज व्हाट बेस, जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया। सो बेस ऑफ दैट, ये दोनों नंबर है, बेस सेम है, तो पावर चाहे कुछ भी हो, डिफरेंट पावर्स भी रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऐड कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट, कि अगर आपके पास कोई है, फॉर एग्जांपल यू हैव 2 रेज टू 2 है, करेक्ट, एंड 2 रेज टू 3 है, सो दैट बिकम्स व्हाट, 2 प्लस 3 यानी कि 2 रेज टू 5 हो जाएगा। वेरी सिंपल, करेक्ट। तो ये रूल याद रखना है कि सेम बेस का जो पावर है वो आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। क्लियर। नाउ सपोज दैट हम लोग ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब a रेज टू m अपॉन a रेज टू n है, अगेन यू कैन सी दैट बेस सेम है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे भी हम लोग एडिशन रूल देख रहे थे, दैट इज नथिंग बट सब्ट्रैक्शन रूल, यू कैन से दैट वन। तो वेरी सिंपल, सेम क्वेश्चन, सपोज दैट यहाँ 2 रेज टू 3 है, 2 रेज टू 2 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 रेज टू 3 माइनस 2। वैसे भी ये बहुत सिंपल है कि आप 2 रेज टू 2 कैंसिल करेंगे तो एक ही 2 बचेगा, बट यहाँ पे रूल कैसे अप्लाई हो रहा है, वी कैन सी दैट वन, करेक्ट ना। सो ये क्या हो जाएगा, और एक्चुअली ये एडिशन वाला ही, बिकॉज सब्ट्रैक्शन एडिशन बोथ आर द सेम थिंग एक्चुअली, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो 2 रेज टू क्यूब, 2 रेज टू 2, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये रूल अप्लाई करेंगे, a रेज टू m माइनस 1। बट एवरी टाइम एक चीज याद रखना है कि इन दोनों ही केस में जो बेसिस हैं, यानी कि जिस नंबर के ऊपर पावर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो दैट नंबर शुड बी व्हाट, सेम, देन वी कैन यूज दैट वन। ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि सपोज दैट यहाँ पे 2 रेज टू क्यूब है और यहाँ पे 3 रेज टू 2 है, तो आप ये रूल अप्लाई करेंगे, नो, नेवर यू कैन अप्लाई, आइदर यू कैन मल्टीप्लाइड और डिवाइड, इन बोथ द केस बेस का नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी द थर्ड वन। थर्ड वन में क्या बोल रहे हैं कि अगर a रेज टू m है और उसकी भी पावर में कोई है, तो इन दोनों के पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है ना, सो वेरी सिंपल, जैसे कि 2 रेज टू 4 है एंड सपोज इसका भी हमने 2 कर दिया, तो ये 4 और 2 आपस में क्या होने, मल्टीप्लाई, दैट इज व्हाट 8 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, सो इट इज व्हाट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, नाउ सेकेंड वाला, ये नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, सो नेक्स्ट में कैसा है, यू कैन सी दैट नाउ बेस आर डिफरेंट। ठीक है ना, यहाँ पे a लिखा, यहाँ पे b लिखा, सो दैट बेसिस आर डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे देखो इनके पावर क्या है, सेम है। सो अगर पावर सेम रहा, लाइक दैट कि अगर 2 का भी स्क्वायर है और 3 का भी स्क्वायर है, सो यू कैन राइट इट कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट इनडायरेक्टली यू कैन से दैट 6 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है, तो अगर बेसिस डिफरेंट है लेकिन अगर उनके पावर एक ही है, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब याद रहना चाहिए, तो फिर हम बड़े कैलकुलेशंस में ये सारे यूज होते हैं, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस टॉपिक इन अ फाउंडेशन बैच, और दैट इज वेरी बेसिक्स थिंग्स। ठीक है ना, अच्छा, नाउ सेम थिंग यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर a और b दोनों बेस नंबर अगर डिफरेंट है और दोनों का पावर अगर सेम है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या फिर यहाँ से हम लोग ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए, हाँ, वेरी बेसिक रूल। तो तब हम इन तरीके के प्रॉब्लम या फिर इस पर बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बेस प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन, और जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे, आई होप एवरीवन नोज शायद, बिकॉज इससे पहले इनके बारे में बात हो सकता है किया हो। सो दैट इज व्हाट, कि अगर कोई भी नंबर है, ठीक है ना, उसका अगर पावर में 0 है, जिसका इंडेक्स 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, करेक्ट।
तो ये याद रखना है कि a रेस टू 0 इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है 1। तो कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर उसका पावर क्या है या इसका इंडेक्स क्या है 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी रूल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सो दिस इज व्हाट ट्रू फॉर द पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी, मतलब जो इंडेक्स इसके हैं वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी ट्रू है और निगेटिव वैल्यू के लिए भी ट्रू है। वो हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स में कैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इंडेक्सेस, दोनों ही कंडीशंस में इसको यूज किया जा सकता है, करेक्ट है। So let's see some examples so will give you some idea how to use the rules. Okay, so here one example I am taking that one and just trying to apply the rules whatever we have done. ठीक है, so let's see, as you can say that कि भाई 8 के पावर में क्या है -1 है, so that is negative integral यहाँ पे है, so that is 8 raised to -1 can be written as what, 1/8, clear now, into it is 5 raised to 3 positive है, so as it is, okay। now 2 raised to what, -3, so it is 2 raised to -3 means what, 1/2 raised to 3, correct। one more thing, if you write na a m like that, so how to read a raised to m, clear। so m will be the power, a is the base, so a raised to m, okay। now it is what, 1/8, so as you know that it is in denominator 1/2 raised to cube, so that 2 will goes up, so this is 5 raised to cube and 2 raised to cube, clear। and now what, 1/8, 5 raised to cube into 8, so that 8 and that 8 will get cancelled, 5 raised to cube will be the answer, so either you can say 5 raised to cube or you can write the 1 2 5, clear। so very simple problem that I am using that one rules, so I hope it is cleared, okay। so one more session in which till that you can revise all the rules, and in the next session I'll discuss the problem based on this power, and you can see that कि इसका एप्लीकेशन बड़े प्रॉब्लम में कैसे हो जाता है, ठीक है ना। सो अच्छे प्रॉब्लम्स रहेंगे जो कि आपको आगे इंपॉर्टेंट है। so let's see that in the next session, till now you can revise what is the rules of that in exponent and power, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंडेक्स के लिए क्या रहता है, ट्रू रहता है। so in the next session we can see that some more problems based on this power. Till then, goodbye.